knowledge and beautiful nature walks in the fields of Guwahati. As someone was just saying, that the students with visual disability can go around in the campus in JNU and be anywhere. That's the exact freedom we want to have for every kind of student, for every kind of diversity, that they should be able to reach out to the level of higher education, and then they should be able to move about. The flexibility should be there. I'll be talking about it later on. And if you look at the IIMs, because these are the elite institutions of India, still there are biases in IIT, gender tilt in IITs and IIMs, but then they also attract a diversity of students, and when they attract diversity of students, their rankings improve, and the top recruiters come to their campuses to recruit, because they find that these are the students who will have a very inclusive mind and acceptance for diversity. Most of the IIMs this year fared very well on academic diversity score. So even they provide academic diversity. And as you all know, the ranking parameters in the ranking parameters of NERF and NAC, faculty and its diversity, students and the diversity, and spread and diversity of alumni are very important goals. आप सभी लोग डेटा प्रोवाइड करते रहते होंगे on for NERF sometimes and for NAC other times, and most of the times we have to give a segregated data on how many students were there, how many males, how many females. Still they are not asking about the other third gender. How many reserve category students, how many persons with disability. So at this present moment, the greatest power of India, which is soon going to be over in 2030, is the demographic dividend, as we call it, the youth. Total 27%, females 26%, and males 27%. So a lot of emphasis is being given on harnessing the youth power. And one of the ways is education. There are, at present, as per the ASH report 2021, 1,113 university and university-like institutions, 43,796 colleges, and 11,296 standalone institutions. And the encouraging thing is that the number of universities has increased by 70, and the number of colleges has increased by 1,453 over the 1920 data. So that says a lot about the efforts that are being made to make the education reach to all. And another interesting fact is that the highest number of universities are there in Rajasthan, Uttar Pradesh, and Gujarat. And highest number of colleges are located in Karnataka, Telangana, and other states. And 43% universities and 61.4% colleges are in rural areas. So at one point of time, we were very disheartened that the higher education is not reaching out to the rural areas except the agriculture institutions. But now the gap is bridging. But when we talk in numbers, the diversity is reflected in it. The gross enrollment ratio at higher education is still 27.3%. That means a lot of people are not reaching out to the higher education level. Or males, females में ज़्यादा फर्क नहीं है. Enrollments have increased. Female enrollment has increased, but still it is not even 50%. The reserve category students have also their proportions have increased. The education in Northeast is also showing an increase, with females increasing more in number. And as I've already said, there are colleges in rural areas, and 10.5% colleges are exclusively for girls. So gender divide is also being addressed. The socioeconomic divide is being addressed. The social divide is being addressed. The geographical divide is being addressed. These were the, if any of you have done research on these issues,
10 years back or 20 years back, these were the major issues ailing the higher education system. But still, I have marked red some of the places where the GER is still very low. That is Lakshadweep, very much in news these days, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, Assam, Tripura, and Daman. The reasons are varied, and the reasons are best understood as diversity. So all of you must have experienced when you what you experience when you move into a class um, from where you have students from diverse religions, persons with disability. I still remember a girl long back. She was there in our class, and she would require us to look at her when we were speaking. हम टीचर्स की आदत होती है, हम थोड़ी देर बाद बोर्ड पे कुछ लिखते हैं और वहां से बोलना शुरू हो जाते हैं बोर्ड की तरफ देखते हुए. मगर उस लड़की ने अपने आप से लिप रीडिंग करनी सीखी थी. उसकी वो सुन नहीं सकती थी और उसकी वजह से वो क्लियरली बोल नहीं सकती थी. मगर उसने बोला, मैम आप मेरी तरफ ना देख के बात करते रहो ताकि मुझे आपकी लिप्स की मूवमेंट समझ आए. तो फिर हम ने अपने आप को आदत डाली कि हम जब बात करें क्लास में बोर्ड पे लिख के फिर टर्न करके हम लोग उसके मुंह के सामने अपने लिप्स हिलाएं ताकि उसको समझ आए और उसको आगे बिठाएं. ये एक बड़ी बच्ची की बात है. एक छोटे बच्चे की बात बताती हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट के साथ there's a nursery school, there's a lab nursery school. There was a child in this nursery school who was not able to see the board. जब उसको बोर्ड नहीं दिखता था और बाकी सब बच्चे बोर्ड की तरफ देख रहे होते थे या टीचर की तरफ देख रहे होते थे और हंस रहे होते थे, तो वो इरिटेट होता था क्योंकि उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता था. और उसके पेरेंट्स जो थे वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि हमारे बच्चे में कोई इश्यू है, इसको दिख नहीं रहा है. बड़ी मुश्किल से उनको हमने ये बोला. वो इतना अग्रेसिव हो जाता था बच्चा कि वो दूसरे बच्चों को चांटा लगाता था और यहाँ कोई ब्लॉक उठा के उनको मार देता था क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, because he was not able to see. But the things changed because early detection tha. The parents went to some specialist, got his vision corrected to some extent. बाकी फिर वो ग्लासेस के साथ देख सकता था और अब वो बच्चा शायद नौकरी करता है, मैरिड है. और मगर यही हमारे बैरियर्स हैं, जो हमारे पर्सनल बैरियर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, जो हमें उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हम, या हम उनके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाते. तो ये बात थी डिसेबिलिटी की. और डिफरेंट जेंडर ओरिएंटेशंस की बात करूं तो आप लोग खुद सब समझते हो कि अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अबाउट मेनी थिंग्स. नॉट एट ऑल, मे बी सम इंस्टीट्यूशंस और सम कैंपसेस आर वेरी जेंडर फ्रेंडली, but with gender orientation friendly also, but others are not. So मैं एक कैंपस में गई थी तो वहां पे मैंने एक लड़का देखा who was wearing a dupatta around his waist like a sari, and he had draped it like a sari, the dupatta, and no one was looking at that. मतलब ऐसे नहीं देख रहे थे कि ये कौन आ गया. मगर मुझे पक्का यकीन है कि बहुत जगह उस बच्चे को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी और जैसा होता भी है. इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे या तो ना पढ़ने ही नहीं आते या फिर पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो एक्सेप्ट कर सके डिफरेंट जेंडर ओरिएंटेशंस की. स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड. हमारे यहाँ भी, इवन दो वी आर जम्मू एंड कश्मीर, we had three different areas. We were still catering to the children from Ladakh also, children from Kashmir and children from Jammu. और उसके अलावा there are so many other dialects and languages. और कई बारी आप नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, हम इंग्लिश में ही बात करते रहते हैं, या फिर हमारे टूल्स ऐसे हैं जैसे हम साइकोलॉजिकल टूल्स यूज करते हैं, वो इतनी शुद्ध हिंदी में बने होते हैं कि ये बच्चे समझ नहीं पाते और उनको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब चीजों में.
तो हमारे पास अब तो काफ़ी सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं, मगर ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस कर चुके हैं। अब तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो फटाफट ट्रांसलेट कर देते हैं, गूगल ट्रांसलेटर है और भी चीज़ें हैं। मगर एक टाइम पे ये इश्यू था इसके साथ भी, और अभी भी है कि हमारा कोई अगर हम यूनिवर्सल करिकुलम डेवलप करें तो वो कौन-सी लैंग्वेज में होगा और किस तरह से पढ़ाएँगे हम ताकि हर एक को समझ आए। Then there are children from different socioeconomic strata who are unable to cope up with the demands of the sometimes the fees, sometimes other things, though there are many schemes for that also, but everyone is not able to access those schemes. So we have to cater to them also. Then there are from rural, urban or tribal regions or from other parts and foreign students. So a lot of diversity is there in the classrooms. And this is a challenge for the institutions because हमें एक रैंक भी गेन करना है। आजकल जब नर्फ रैंक आता है सबका तो सबको ऐसे ही घबराहट हो रही होती है जैसे रिजल्ट के टाइम पे होती थी कि अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं। विल वी गेट इनफ फंडिंग बिकॉज़ आवर रैंकिंग इज़ good or will we fall down in our ranking? So we have to talk about culturally inclusive classrooms जहाँ पे अलग लैंग्वेजेस के लोग आ सकें, पॉजिटिव इंटरैक्शंस भी हों, किसी को नीचा ना दिखाया जा सके और कोई भी ऐसी इनसिविलिटी हो रही हो क्लास में तो उसको डिस्करेज किया जा सके, ओपन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल माहौल हो क्लास में जहाँ हम आराम से डिस्कस कर सकें चीज़ें। मगर जब डाइवर्सिटी की बात आती है, अगेन कमिंग बैक, वी आर अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। नोइंगली और अननोइंगली हम कभी ना कभी इनसेंसिटिव होके किसी को कुछ कह दें, ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे कैंपसेस पे। एज टीचर्स वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज जो यूथ डिविडेंड है वो हमारे हाथ में है। अगर वो 27% ही आ रहे हैं, अगर हम 27% को ही अच्छे से पढ़ा पाएँ, हम एनकरेज कर पाएँगे मे बी नेक्स्ट टाइम वी हैव 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मैसिफिकेशन हुई है हायर एजुकेशन की एज़ यू ऑल नो एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इसका ये भी मतलब है कि एज वी आर ग्रोइंग वी आर बिकमिंग मोर डाइवर्स and this is reflected in the data given by Ministry of Education. Nearly 57% of students come from disadvantaged group in the universities and colleges. Diversity, as you all know, means variousness or multiculturalness. And for Indians, it is very important, the higher education system, it is very important to understand that students and their life histories and experiences should be placed at the center of teaching and learning process, and pedagogy should take place in an environment that is familiar to students and addresses multiple ways of thinking according to a multicultural education supporter. बहुत डिफिकल्ट है हर एक की नीड्स पूरी करना, बट एज वी से इन द education of the younger children, individualized education program. तो उसी तरह वी हैव, अगर हमारे पास डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स की, वी हैव टू थिंक अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स बिकॉज सबकी अपनी पेस है डेवलपमेंट की। कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन में, जिनमें से 10th प्लान में हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद नीड्स, स्पेशल नीड्स इंट्रोड्यूस किया गया था। 12th प्लान में स्कीम ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेल होता है। रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, which ensures that all education institutions provide inclusive education, sports, recreational facilities, and without discrimination on the equal basis with others. अब होता क्या है, बड़ी बारी जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, हम टूल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, अभी भी हम बाइनरी थॉट में ही होते हैं, मेल फीमेल, अदर जेंडर लिखा हो या तो ट्रांसजेंडर लिखा हो, नहीं भरेंगे बच्चे। हमने करके देखा है ऐसा, नो चाइल्ड वांट्स टू एक्सेप्ट बिकॉज दे नो दैट देयर इज स्टिग्मा अटैच्ड टू इट।
though they have the rights, and though they have a right not to be discriminated on campuses, yet the discrimination continues. Then we had RUSA, all of you know, for improving access and equity and quality. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो डाइवर्सिटी को एड्रेस कर रही है, and it talks about education for disadvantaged, which includes socioeconomic disadvantaged groups broadly categorized on the basis of gender identities, sociocultural identities, geographical identities, disabilities, and socioeconomic conditions. NEP says that education is the foremost primary measure to achieve economic and social mobility and inclusion and equity. So, ये बिल्कुल सही बात है और ये हमने एक्सपीरियंस भी किया है. Once you are educated, you are not, you tend to come to meet so many different people and you tend to appreciate and respect the diversity that that may not be appreciated by those who have not had such chances to look at diversity. So, inclusive practices can be made by corresponding changes in curriculum, pedagogies, continuous assessment, and student support system to ensure quality education. Later on, I'll be talking about what inclusive policies we can have. And we need to create atmosphere of help and support so that no one feels discriminated on the campuses. And high quality support centers need to be developed. अब हमारे यहाँ अभी भी मुझे वो नहीं नजर आते हैं, but as NSS coordinator, when I not as NSS coordinator, when I visited for my daughters, NSS volunteers were pairing with the any of child who was coming for admission, जो persons with disability admission के लिए आ रहे थे. एक बच्चा उनके साथ पेयर हो रहा था, उनको जगह जगह ले रहा था, जहाँ क्योंकि कभी कहीं जाना होता था, कोई वेरिफिकेशन के लिए, कभी किसी ऑफिस में जाना है. So they were being facilitated. The systems were being made easier. Instead of they moving everywhere, the system was coming out to help them and support them. Such kinds of initiatives should be there, and I think all of you must be having disability policy in your university and some disability initiative, because we in our department have one person who is looking after the disability initiatives of the University of Jammu, and she is conducting very good programs to encourage students who are very few in number in the university, though we have a reservation for persons with disability. Yet they are still not there in that number that they should, because still we don't have as much support system. Ramps तो हैं, but सारे departments में वो lift नहीं लगा सकते ताकि वो बच्चे second floor या third floor या जहाँ labs हैं वहाँ जा सकें. Labs may also have shelves which are higher for them, which may not be catering to them. We may not be having technical expertise to teach the children with persons with disability. We may not be having equipment which is needed to support. Like I was in library. We have someone was talking about the Helen Keller Center. So when I was in charge of the Jammu University Library, what happened was the lift got damaged because of certain thing. It was not working since 7-8 months, and despite the best efforts, we were not able to get it repaired. मतलब हो ही नहीं रही थी उनसे, और जब हुई भी फिर दोबारा वो शॉर्ट सर्किटिंग हुई और खराब हो गई. तो एक बच्ची थी जो पढ़ना चाहती थी. She was physically challenged, and हमारी लाइब्रेरी में जो मेन रीडिंग रूम्स थे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे थे. We allowed her father to be with her when she was in the library, and वो उसकी और एक सबको बोल रखा था कि इसकी हेल्प करो, जो बुक्स चाहिए वो नीचे ला के दो इसको, ये नीचे बैठ के पढ़ेगी. But it was very मतलब I was also feeling very bad that we are being at such level, we are not able to help it because technology का failure हो चुका था. There have to be Helen Keller centers which have equipment that can help the children with especially the visual impairments read, because पढ़ाई हमारी सारी शब्दों पे based है, text पे based है, और ये text जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं,
जब तक उसको समझ नहीं आएगा, वो कैसे ये पढ़ाई पढ़ेगा? बिकॉज़ अभी भी हम बहुत टेक्सचुअल हैं अपनी अप्रोच में। तो फिर वो बच्ची जो है वो नीचे बैठ के पढ़ती थी, बट आई फेल्ट वेरी बैड। सो वी नीड टू हैव हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स, और इतने फंड्स होने चाहिए कि जो रिसोर्सेज उनको चाहिए हम उनको उनके लिए प्रोवाइड कर सकें। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, देयर आर मेनी अदर चिल्ड्रन। जैसे सेरेब्रल पैल्सी है, बच्चा मूव नहीं कर सकता है कहीं, सो हाउ कैन द सिस्टम गो टू दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन कमिंग टू द सिस्टम? हमारे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कर चुकी हूँ। जैसे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चे हैं, उनको कई बार इंग्लिश में कन्वर्सन नहीं होते। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारा सारा सिलेबस जो है वो या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो क्या कर सकते हैं हम? बिकॉज़ दे यूजुअली कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स व्हिच आर डिसएडवांटेज। So we can have some kinds of bridge courses or special inputs, tutorials, बहुत कुछ है आजकल जिसकी हम बात कर रहे हैं। मेंटर मेंटी रिलेशनशिप की बात करें, we can allot mentors, we can have a senior and a junior student together. There are many things that can be done. So NEP talks about that also. And socio-emotional and academic support like counseling and mentorship programs, and access to participate in education, the ability to learn, and the right to exercise their voice, their choice, and control in managing their own educational experience. ऐसा क्यों बोला जाए कि नहीं जी हमारे पास यही है, आप इसी में करो, यही कोर्स आपको ऑफर हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए। अगर वो पढ़ना चाहता है उसको चॉइस होनी चाहिए कि वो कुछ भी पढ़े। आईआईटीज़ में अगर बच्चे पढ़ सकते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी तो काबिल होनी चाहिए, या कैंपसेस, कि हम किसी बच्चे को डिनाई नहीं करें, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम हैव राइट टू गेट एजुकेशन। ये आयुष का डेटा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करी थी, तो आप देखिए ज़रा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। हैंड रेल्स आर अवेलेबल इन ओनली 55% ऑफ द यूनिवर्सिटीज। एंटी रैगिंग सेल तो जरूरी है, वो सब जगह है। सेल्फ डिफेंस क्लासेस फॉर वुमेन ओनली 52। देन टॉयलेट्स फॉर फीमेल स्टिल 91%। टॉयलेट्स फॉर डिसेबल्ड फीमेल 70, and for disabled male 71%, and vulnerability assessments only 54% in the universities. And look at the colleges data also, which is lesser than the university data and standalone mein. So if we look at all these figures tell us that we still have to work a lot if we want to be diverse and if we want to be inclusive also. UGC has also given us accessibility guidelines and standards which talk about common learning platform that is flexible and accessible for all students to learn together. This is a big challenge for the teachers, but somehow we have to manage these things, and there are technology which are there by our sides. We have to remove the barriers. Whenever we talk of persons with disability, there's a Sugamya Bharat Abhiyan that is going on. Whenever we talk of persons with disability, we talk of barriers, which are social barriers, which are cultural barriers, and which are also the physical barriers. They have the health barriers, they may be challenged by certain diseases, they may be challenged by certain physical conditions or psychological conditions, but removing the barrier is what accessibility guidelines talk about. Then we also have this draft National Higher Education Qualification for Framework, which talks about multidisciplinary university or education offering instruction in Indian languages. Now, what as teachers we need to do is, the first step is understand diversity and link it to inclusion. NEP has given us huge challenge for accessibility, equity, and quality. I'll be talking about it. At the institution level, आप सबके यहाँ NCC, NSS, sports, cultural, literary, and creative activities होंगी, and all the review on diversity and inclusivity talks about creating opportunities for students to meet,
creating opportunities for students to meet on neutral grounds. और यही है वो neutral grounds जहाँ वो मिलते हैं, जहाँ वो create करते हैं, जहाँ वो बातें करते हैं. अगर आप इनसे कहीं जुड़े हैं तो आपको याद होगा जहाँ NSS कैंप्स होते हैं, NCC कैंप्स होते हैं, वहाँ पे इतनी डाइवर्स, खासकर जब प्री आरडी या प्री रिपब्लिक डे या रिपब्लिक डे परेड के लिए कैंप्स होते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, या नेशनल यूथ फेस्टिवल होते हैं, या जोनल्स होते हैं, इतने दूर दूर से लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दे फॉर्म फ्रेंडशिप्स, they form an appreciation for each other, they form respect for each other's culture, and they form respect for diversity. So universities or colleges में we have to uphold the spirit of equality. हमारे constitution का basic tenet है, we have to respect that tenet. We have to formulate this diversity committees. We have to empower equal opportunity cell and centers for women's studies. We have to have orientation programs for entry level students. I hope आप सबके यहाँ हो रहा होगा orientation program, so that they are confident when they reach the university or college that there is someone who cares, that they belong to that institution. Then we can have student support programs, like I've already talked some about, mentorship and handholding, the mentor-mentee programs, the vibrant campus, ensuring participation of diverse students in extracurricular activities. They should not be just restricted to who's the teacher's pet. They should be ensure the participation of all. मगर usually हमने खुद भी experience किया है, it's only a few who are promoted again and again, and others are not given. Some people are not even given chance to come out and represent their institutions. Transparency in flow of information to all students. I think अब में हमारे यहाँ काफी हद तक है transparency, because everything is on the net. All the universities have their social media handles and everything, so much of the information flows to the student. पहले ऐसे होता था, हम कई बारी टीचर्स के साथ भी होता था, कोई एडवर्टाइजमेंट निकल रही थी तो कई लोग दबा जाते थे, वही अप्लाई करते थे. उसी तरह बच्चों के साथ भी होता था, कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, तो दबा देते थे इंफॉर्मेशन. बट अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता. इट हैज टू कम आउट इनटू द ओपन. सोशल ऑडिट ऑफ द कैंपस. जब मुझे याद है कुछ, मैं तो हर साल ही करती हूँ जेंडर ऑडिट, अपने बच्चों से पूछती हूँ कि व्हाट दे लाइक अबाउट द कैंपस, व्हाट दे डोंट लाइक अबाउट द कैंपस, एंड हाउ सेफ दे फील एट व्हाट प्लेसेस इन देयर सोसाइटी. तो बहुत बारी ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बोला दे डोंट इवन फील सेफ ऑन कैंपस आफ्टर 5 or 6 o'clock because of what reasons. When we ask them the reasons, आप अगर जेंडर ऑडिट रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे उनमें भी यही होता है कि बहुत अंधेरा हो जाता है, एंड देन देयर आर नो लाइट्स ऑन द स्ट्रीट्स. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वो सेफ नहीं फील करते, एंड दे कैन नॉट कम्यूट आफ्टर अ सर्टेन आवर. सो बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं. कई बच्चे हमारे जो हैं वो रात को कहते हैं हम 9 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह बेचारे फिर 6 बजे चल पड़ते हैं. Due to certain reasons, they are not staying, because I have the girl students, they are not staying in the PGs or the hostels. So audits करना बहुत जरूरी है समझने के लिए कि बच्चे जो हैं क्या फील करते हैं, क्या समझते हैं, क्यों वो कहाँ जो है इम्प्रूवमेंट का स्कोप है हमारे कैंपसेस में. एंड ट्रेनिंग द फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन डाइवर्सिटी इश्यूज. आप लोग समझ जाओगे फैकल्टी, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी समझें दैट डाइवर्सिटी क्या होती है, एंड हाउ टू एड्रेस द डाइवर्स इश्यूज, एंड दे डोंट लुक डाउन अपॉन. एंड यू मस्ट हैव सीन द यूजीसी कमिंग अप विद सर्टेन सर्कुलर्स टाइम एंड अगेन that there is no tolerance for certain issues on the campuses. Implementation on UGC regulation and promotion of equity in higher education, ये सब campuses में होना चाहिए. Developing action plans to address sensitive areas. Then we talk about the academic flexibility. When we talk of diversity, we also talk of academic flexibility. What is this academic flexibility? हम हर बच्चे को एक ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे. That we have to understand, and we have to prepare the learning paths that are suitable. I know it's very time consuming. I know it's very challenging.
but all children cannot be taught at one particular time. अब ये जो हमारे distance education systems हैं या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स है, ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि ये किसी उस टाइम पे केटर करते हैं नीड को जब हमारे रेगुलर इंस्टीट्यूशंस नहीं करते, लाइक इवनिंग क्लासेस, लाइक ब्लेंडेड लर्निंग. So we have to talk about flexibility in our education system. The curriculum design, development, planning, implementation, and enrichment have to talk about the flexibility. We cannot have one yardstick for every student, especially those people who are facing learning disabilities. Some people have specific learning disabilities. They may not be able to, आप बोल रहे हो वो नोट्स नहीं ले पाएंगे, उनके लिए अलग तरह का मीडियम यूज करना पड़ेगा. So we have to plan for reducing the course load, subject waiver or subject student substitution. For children with persons with disability, we have to offer plus curriculum. Maybe they are not able to complete all the courses at one particular time. We have to give them opportunity to complete it at their own pace. So, specifying overall learning goals and specific learning objectives relevant to each diversity. Ensuring learning objectives that cover cognitive, affective, and psychomotor domains, because again I say that all are not made of one same material. हम सब अलग हैं. Even twins में भी differences होते हैं. Twins जो identical twins हैं उनमें भी differences होते हैं. So again हमारा जो time limits होते हैं वो ऐसे होते हैं कि we have to rush with the courses. But ideally, we have to give these, if we want to bring persons with disability and disadvantaged groups into the realm of education, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, rethink again. एक और तरीका हो सकता है availability of syllabus in various accessible formats as per the needs of student. They can be a digital copy, they can be hard copy, braille, large print, images with verbal description, Indian Sign Language formats, appropriate color schemes, etc. Include a list of reference material, reading material, and textbooks that are available in accessible format, like visual media with subtitles, digital material compatible with screen readers. Include a clear statement of how it addresses the issue of diversity, inclusion, and overall engagement. There should be flexibility in choice of subjects, course schedules and academic calendar, pace of the course, attendance requirement. कुछ बच्चे ऐसी हो सकते हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकें because they are facing certain problems. They may be terminally ill. They may be having chemotherapy in between. But we don't want to discourage those students to attend the campuses. So some kind of attendance waivers have to be there. Means of instruction to address a range of learning styles, good quality assessment and evaluation methods. अभी तक हम सिर्फ लिखित फॉर्म में इवैल्यूएशंस करते हैं या वाइवा वो से करते हैं. We have to find other examination methods also. So जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप सबके यहाँ रहा इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसका पर्पस यही था फ्लेक्सिबिलिटी लाने का, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी लाने का, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने ढंग से अपना सिलेबस प्लान कर सकें, अपने ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकें. बट समहाउ हमारी जो सोच है वो इतनी कंपार्टमेंटलाइज हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हम कहते हैं जो फिजिक्स वाले हैं, जैसे हमें बहुत बारी बोला जाता है कि आप लोग कहाँ से होम साइंस वाले साइंस में आ गए. हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस ही रहता है, whether we are science, we are social science or a behavioral science. Why is it so? Because we have a very compartmentalized thinking. But जब choice based credit system शुरू हुआ उसमें open electives की बात की गई. Open elective यही था कि आप खुद डिसाइड करो आपको क्या पढ़ना है. तो हमारे पास जैसे मेंटल हेल्थ पे एक ओपन इलेक्टिव हम चलाते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे साइंस कोर साइंसेस से आते हैं और भी बहुत. इट्स अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट, मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ. तो दूसरा हमारा चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स पे कोर्स है, वो भी बहुत पॉपुलर है. और जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं देन दे अंडरस्टैंड व्हाट इज होम साइंस एंड व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. इट इज नॉट जस्ट कुकिंग बेकिंग. इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज वैसे भी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर
मतलब फूड्स एंड न्यूट्रिशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, वहां आके उनको समझ आती है। अदरवाइज वो अभी तक यही सोचते हैं कि ये लोग खाना ही बनाते हैं, तो फिर वो समझते हैं। इसी तरह एप्रिसिएशन बनती है जब क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, जब कंपार्टमेंट्स में नहीं बंटे होंगे हम, तभी हम लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। अगर हम बाहर जाते हैं, जब उनके एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, उनका इतना फिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप बच्चा खुद सोचता है मुझे म्यूजिक पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, एंड देन आई वांट, मतलब आपको क्रेडिट्स पूरे करने हैं। इट्स अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो क्रेडिट पूरे करने हैं, मुझे 24 क्रेडिट चाहिए तो मैं ये पढ़ूंगी, और इस तरह से आई विल शेप अप माय डिग्री so that I fulfill my own wishes and also get a good employment opportunity. और यही मैं क्योंकि स्वयं को इंट्रोड्यूस मैंने ही किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं हमेशा यही बताती रही कि यू कैन डिजाइन योर ओन कोर्सेज, यू कैन डिजाइन योर एजुकेशन इफ यू follow the choice based credit system. And another thing that it provides is the mobility. अब क्रेडिट मोबिलिटी जो है, जैसे स्वयं का कोर्स डिजाइन किया है कहीं पे यूनिवर्सिटी, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, मगर हम कर रहे हैं यहाँ जम्मू में बैठ के कोर्स, तो वो क्रेडिट हमें ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी टू दिस यूनिवर्सिटी। और यहाँ से अगर बच्चे के फादर या मदर जो भी हैं ट्रांसफर होते हैं टू अनदर स्टेट इन द कंट्री, ये क्रेडिट्स जो हैं, जो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये सारे क्रेडिट्स उधर ट्रांसफर हो जाएं। मगर अभी हम इतना ज्यादा नहीं इस चीज पे काम कर पाए हैं। यस, स्वयं में हम क्रेडिट ट्रांसफर अलाउ कर चुके हैं सब जहां जहां पे भी इम्प्लीमेंटेड है। स्वयं की बात करते हुए, अगेन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु want to learn at their own pace and who are have a self directed style of learning, because anytime anywhere anyone kahin bhi baith ke aap padh sakte ho, and even degree programs are now available on swayam. Then this academic bank of credit, it allows the UG PG student to जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं वैसे वो क्रेडिट रख सकते हैं, एंड दे कैन बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। जब एक साल पढ़ लिया, फिर हो सकता है वो बेचारा ड्रॉप आउट हो गया या किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ना चाहता है, उसके क्रेडिट रहेंगे। फॉर अ सर्टिफिकेट कोर्स देयर आर 40 क्रेडिट्स, डिप्लोमा 84 क्रेडिट्स, बैचलर डिग्री 120 क्रेडिट्स, एंड ऑनर्स एंड रिसर्च क्रेडिट्स आर 160। और ये कहाँ से आएंगे क्रेडिट? फ्रॉम सेल्फ स्टडी, फ्रॉम ई लर्निंग, फ्रॉम लैब वर्क, फ्रॉम ऑनलाइन अकोमोडेशन, फ्रॉम होम बेस्ड ट्रेनिंग्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट लर्निंग, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, एंगेजमेंट इन इंटर्नशिप, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी कोर्स। ऑनलाइन अकोमोडेशंस क्या क्या हैं? accessible course material like we can have speaking books and NVDA screen readers are there in जो हेल्प करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, नोट टेकिंग, क्लोज कैप्शनिंग फॉर वीडियोस, एक्स्ट्रा टाइम फॉर टेस्टिंग, डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस टेस्टिंग, रीडर्स, स्क्राइब्स, especially when we are talking of persons with disabilities. When we talk of gender diversity and inclusivity, the strong challenge that is felt by UGC is there's a strong need to challenge the culture of silence, because बहुत बार बच्चे बोलते नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, चुपचाप औरतें या लड़कियां सहती रहती हैं विद इन द कैंपस और आउटसाइड, और मे बी दैट इज द रीजन why they would prefer not to come to the campus at all at one point of time. So sensitization की जरूरत है, और आप सबको पता है कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशंस करते ही रहते हैं। यूजीसी की सक्षम कमेटी की रिपोर्ट है कि सबके लिए जरूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं कि स्टूडेंट्स को आप जेंडर सेंसिटाइज करो, ऊपर से लेके नीचे इवन पेरेंट्स को आई थिंक जेंडर सेंसिटाइज करना चाहिए। सो एक बारी हम डीडी डिस्टेंस एजुकेशन में मैं एक ये जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर रही थी, तो थोड़ा उनकी क्लासेस लेट होती हैं, तो खत्म होते होते 5:30 पौने 6 बज गए। एक बच्ची थी, बहुत फार फ्लंग एरिया से थी, बॉर्डर एरिया से थी, ऑलमोस्ट जहाँ पे फायरिंग हो रही होती है ना, उसके पास ही उसका घर था। तो वो जब घर पहुंची तो उन पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे थे, तो वो नहीं समझ पाए कि ये लड़की इतनी लेट क्यों हो गई है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि कल से तू पढ़ने ही नहीं जाएगी, तू पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है।
वो इतना रोई लड़की, उसने फिर हम सबको फ़ोन करा के अपने उसके पेरेंट्स को हमने कन्विंस किया कि ये इधर-उधर नहीं थी, ये हमारे साथ थी, ये एक प्रोग्राम अटेंड कर रही थी। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स बने लड़कियों के लिए तो कई बारी उनके पेरेंट्स ही उनको छुड़वा देंगे एंड वुमेन आर स्टिल नॉट वेरी पावरफुल टू स्टैंड अगेंस्ट मतलब इस तरह से हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे बायसेस हैं। जो सक्षम पोर्टल है यूजीसी का, इस पे एक जगह पे सब कुछ जो विमेन रिलेटेड है या स्टूडेंट्स रिलेटेड है उसको सबको एक जगह वेब रिसोर्स कर दिया गया है और वो बात करते हैं जेंडर चैंपियंस की। देन ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द पोश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के ऑन वर्क प्लेसेस का जो एक्ट है, इट इज देयर इन ऑल प्लेसेस एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटीज भी हैं और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, only to bring in more females to the higher education. महाराष्ट्र ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैंने जितना भी रिसर्च किया वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन का प्रबंध किया है। There are 48 transgender students on roll of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, and University of Mumbai also has registered students. Like this campus has many students who can express gender orientation without any bias and dignity. If you look at your own campuses also, there will be no separate washrooms for transgenders, but there are at the TIS campus. And sensitization of other stakeholders like faculty, students, administrators, and others. There are many other people who can make fun of them. You can orient the faculty and students, but there are many other people who will not make the things easy for the people who express their gender identity or orientation. And the transgenders themselves have to be sensitized to participate in the educational process. This is one of the studies that makes this beautiful diagram about the literacy rate of transgenders. मैंने जब average देखा तो it is just 3%, maybe 2.5% होगा on an average in India. हर state में 3 या 2% ही है. When we talk of persons with disability, as I've already said, the Divyangjan, जो आयुष report कहती है कि the females are lesser in total among the persons with disability, and overall also they are very few in numbers. And UGC has come up बहुत सारी guidelines हैं UGC की. One of them is guidelines for credit-based course on pedagogical aspects of teaching Divyangjans and persons with specific learning disabilities. Addressing socioeconomic diversity is also one of the issue in our campuses. Removing barriers and ensuring equal opportunities can create pathways for access to quality education for economically disadvantaged, for rural tribal communities, for marginalized sections of society. Easier said than done. Being academically underprepared, बहुत बारी क्योंकि उनके पास सब equipment नहीं होता है to deal with the modern type of education. They also have very low level of proficiency in language and low pre-college scores, which culminate in their failure to clear examinations in the initial semester, thereby posing challenge for their academic integration in the college. So हमारे जैसे काम करने वाले जो हमारी हेल्प करती हैं, जो हमारी हेल्पर्स हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को फ्री रख सकते हैं फॉर अदर थिंग्स, फॉर टीचिंग एंड फॉर ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, एकेडमिक एक्टिविटीज, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि again English is one of the issues in our university. My own helper's daughter is trying to seek education and उसके नंबर कम आते हैं क्योंकि वो लोग मतलब वर्बलाइज नहीं कर पाते, वो लोग या लिख नहीं पाते जो वो समझते हैं, जो पढ़ते हैं. Maybe they know much more than the other girls, maybe they are much smarter than the other girls, but वो चीज वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती उनके लिखावट में, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं. We also are a big geographically diverse country, and
अगर हम इन सबको इकट्ठा करें, मैंने जैसे बोला जब नेशनल यूथ फेस्टिवल्स होते हैं ऑफ विच आई हैव एक्सपीरियंस, या स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो कितना बच्चे इकट्ठे मिलके दे एंजॉय अ लॉट, दे गेट टू नो अ लॉट एंड दे फॉर्म वेरी गुड रिलेशनशिप्स एंड विद ईच अदर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बाद में भी याद रखते हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे और इस पे सब मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो एक वो एम्पैथी और ओपन माइंडेडनेस बनती है बच्चों में। Now, the teacher's role is to understand and appreciate, minimize achievement gaps among students. अगर कोई बच्चा पीछे रह रहा है, तो हमारा एज अ रोल मेंटोर, एज अ रोल टीचर ये है, एज अ रोल ऑफ द फैसिलिटेटर, कि हम देखें कि किस डायमेंशन में पीछे रह रहा है, किस वजह से पीछे रह रहा है, लिखना नहीं आ रहा है उनको, बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, क्या वजह है, या समझ नहीं आ रही, जो हम बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। हमें अलग-अलग डोमेन्स को समझना पड़ेगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। हमें ये भी समझना पड़ेगा हर बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल होता है, कहीं देख के अच्छा सीखते हैं, कहीं सुन के अच्छा सीखते हैं, कुछ करके टेक्टाइल स्टिमुलेशन से, हाथ लगा के, जब तक हाथ से कुछ नहीं किया उनको नहीं समझ आता है, और कहीं मूवमेंट से अच्छा सीखते हैं। तो सबके अपने-अपने लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी कैन यूज वेरियस अप्रोचेस, ताकि हम हर तरह के लर्नर को एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकें। हम क्लासरूम डिस्कशंस कर सकते हैं, ग्रुप वर्क्स कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स करते ही हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड एक्सपीरियंसेस, ये ऐसी जगह है जहाँ बच्चे जो कई बारी नहीं क्लास में बोल पाते हैं, वो बोलते हैं, वो एक्सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं। अगर वन टू वन टीचर के साथ मेंटर मेंटी रिलेशनशिप होगा, बच्चे बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे मैंने बारी-बारी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं और लड़कियों को कई बारी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और जब आप एक टीचर के साथ उनको जोड़ देते हो, वो उनके साथ डिस्कस करती हैं अपने इश्यूज़ को, और सीख करती हैं कि एक तो कान, एक सेंसिटिव ईयर टू लिसन, और दूसरा सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। कई बारी हम प्रोवाइड कर पाते हैं, कई बारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके फैमिली के रिलेटेड होती हैं, नहीं भी कर पाते। हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसकी मदर की डेथ हो गई, फादर ने उसकी शादी कर दी पढ़ाई के दौरान ही, वो बच्ची पढ़ ही नहीं पाई ढंग से क्योंकि उसको अब्यूज़ करते थे वहाँ पे। हमने वहाँ के सरपंच को भी अप्रोच किया, बहुत कुछ किया, बट समहाउ नथिंग हैपेंड। तो इट वाज़ मतलब कितना पढ़ चुकी वो लड़की, और एंड में आके उसकी पढ़ाई छूट गई जस्ट बिकॉज़, हाँ, उसके बाद उसकी बेटी हुई, और उस बंदे ने हॉस्पिटल जाके उसकी पिटाई की। और पर वो बच्ची कह रही थी, मेरे पास आई हैव नो वन टू फॉल बैक अपॉन, मेरे पास कोई पैसे नहीं है सपोर्ट करने को अपने को, तो मैं इसके साथ नहीं लड़ाई कर सकती। अब कई ऐसी जगह हैं जहाँ हम भी थोड़े से बेबस हो जाते हैं, हम उनको सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ जाओ, बट बहुत बारी हमें उनके लिए अपने करिकुलम्स को भी मोल्ड करना पड़ता है, बड़ी बारी हमें उनके लिए अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी मोल्ड करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, आई थिंक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिलाने की बात है बच्चों को, जो डाइवर्स हैं। आई होप आई हैव नॉट ओवरस्टेप्ड माय टाइम। हेलो? जी No, मैम। ma'am. No, ma'am. You are on time. हाँ जी मैम। Okay, okay. So I was talking about the technology tools for teachers and students, और आपको पता ही होगा 17 डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में, 17 बाय 17 कहते थे, उनमें से कुछ बहुत इफेक्टिव रहे हैं, जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, वर्चुअल लैब्स, और शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, ये सब आप लोग भी यूज करते होगे। देयर आर मोबाइल एप्स, स्वयं की भी मोबाइल ऐप है। देयर आर वेब क्वेस्ट एंड पॉडकास्ट, एंड देन देयर आर स्मार्ट क्लासरूम्स। ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दीज स्मार्ट क्लासरूम्स, जो एक इंटरैक्टिव बोर्ड की तरह हैं, जहाँ पे आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ा सकते हो। और जब ये कोविड आया, उसने तो हमारी टेक्नोलॉजीज, सब टीचर्स की टेक्नोलॉजीज को एकदम बूस्ट दी। वी learned about so many things so quickly, so fast, and we delivered education even in the time of crisis.
That is how we address, that is what is expected from teachers, to address the diversity, to address, make it more inclusive. जो बच्चे नहीं भी, जिनके पास मोबाइल कनेक्शंस थे, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल कनेक्शन नहीं थे या नहीं काम कर रहे थे या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज थे, वो नहीं कर पाए रिचार्ज, उनको भी हमने किसी तरह पहुंचाया उस लेवल पे जहाँ पे वो एक्सेस कर पाए हमारे टीचिंग को, किसी ना किसी तरह करी उनसे बात, चाहे वो अपने पेरेंट्स के फोन्स यूज करते थे या कैसे भी करते थे। तो बहुत सारे टूल्स हैं टीचर्स के लिए। और जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं और जब हम बहुत सारे डाइवर्स लोग एक क्लास में बैठते हैं, तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और एनालिटिकल स्किल्स बनाते हैं अपने बच्चों में। जब उनके पास डाइवर्स एक्सपीरियंसेस आते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दे ट्राई टू रीजन, दे ट्राई टू थिंक, दे ट्राई टू लॉजिकली कम टू कंक्लूजंस, दे ट्राई टू रिटेन इंफॉर्मेशन, गैदर इंफॉर्मेशन, और इस तरह इतना सारा जब वो एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम्स का, they tend to get to the solutions. So sometimes they have very wonderful solutions to the problems. बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसा कॉन्टेस्ट या कुछ करते हैं, जैसे अभी भी हमने पीछे कुछ किया था विकसित भारत, आप सबके यहाँ हुआ होगा, बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी की है हमने। बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते हैं बच्चों से, ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, क्योंकि हम एक माइंडसेट में थोड़ा-सा ढल भी जाते हैं टीचर्स कभी-कभी। एक तरह की सोच बन जाती है हमारी, मगर बच्चे एक फ्रेशनेस लाते हैं उस सोच में। और वो सोच अगर हम जनरेट करें, जैसे एक लड़की ने बोला विकसित भारत का मतलब है पहले तो हम एक इंडिविजुअल को अपने आप को डेवलप करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। बाकियों को क्या पहले डेवलप करना, अगर हर इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कर ले तो ऑटोमेटिकली भारत विकसित होगा कुछ ना कुछ देर। तो जब हम उनको ऐसे-ऐसे सिचुएशंस में रखते हैं, दे टेंड, थोड़ी देर वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है थॉट, एंड देन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम, एंड उनकी स्किल्स बढ़ती हैं, उनकी टेंडेंसीज बढ़ती हैं। मैंने देखा है जो बच्चे एनएसएस, एनसीसी वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज में, उनका स्टाइल ऑफ थिंकिंग और उनकी पर्सनालिटी में जो चेंज आती है वो रिमार्केबल होती है। हमारे 2-3 बच्चे, अभी मेरा जितना देर रहा एनएसएस के साथ, बाकी बच्चे भी बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं, मगर जब तक मैं रही एनएसएस में 3 बच्चों को नेशनल अवार्ड मिला है फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बच्चा जो उनमें से है वो डीडीसी जो है ये आजकल ब्लॉक लेवल पे जो बनते हैं, वो उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ब्लॉक को, और ही इज डूइंग वंडरफुली because he understands the problem of the place. He was from a very far flung area, a mountainous region, which is not very connected to the main city of Jammu. तो वहां पहुंचने के लिए भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता था। वो वहां सड़कें बनवा रहा है, मैंने उसको बोला था विमेन्स इश्यूज पे खास ध्यान देना, वो कर रहा है धीरे धीरे, टॉकिंग, ही एंड ही कैन टॉक। जब मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, तो ही कैन टॉक बिकॉज ही हैज द कैपेसिटी, ही हैज द स्किल टू टॉक इन दोज फोरम्स। वो डरता नहीं है कि मैं बोला तो गलत बोला, या मैंने बोलना है या नहीं बोलना है, उसको वो नहीं है, वो बोलता है वहां पे। और जब वो शेयर करता है, आई फील वेरी प्राउड दैट ये है हमारे बच्चों की ग्रोथ, ये पहुंचे हैं जहां पे वो पहुंचे हैं। एक को ये क्या टाटा कंसल्ट टीसीएस, उसमें नौकरी मिली है एक बच्चे को, और वो कह रहा था मेरा सारा इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस इन एनएसएस रादर देन व्हाट आई हैव लर्नड इन द कंप्यूटर साइंसेस। इसी तरह ये बच्चे जो हैं जब इस तरह से जाते हैं ना इन सिचुएशंस में जहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है उनको, उनकी पर्सनालिटी बहुत ब्यूटीफुली इमर्ज करती है उन चीजों से। I've already talked about many of these mechanisms, मगर सबसे एक और चीज है जो आजकल सारे ही आप लोग कर रहे होगे, द फीडबैक सिस्टम। कल ही मैं देख रही मतलब हम लोग हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हर सेमेस्टर में हमारे कोर्सेज के लिए हमें फीडबैक देते हैं। कई बार थोड़ा बायस भी होता है और वो नेचुरल है, वो हर ह्यूमन बीइंग के लिए है। कई बार कुछ बच्चे
सिर्फ एक ही लाइन पे टिक करते जाते हैं, गुड 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 गुड, जो होता है एरर ऑफ सेंट्रलिटी जो टूल्स में होता है। मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एज टीचर्स और इंस्टीट्यूशन और सिलेबस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जब बच्चे इनको रेट करके जाते हैं तो हमें भी समझ आती है हम कहाँ खड़े हैं, हम किधर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। और शुरू में अच्छा तो नहीं लगता था कि ये बच्चे हमें रेट कर रहे हैं, मगर अब मुझे लगता है नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. It is also like bringing the children into the governance and making the environment more inclusive. और इसी तरह जब बच्चे जो ये डाइवर्स बैकग्राउंड्स के हैं, जो डाइवर्सिटी से आ रहे हैं, जब वो रेट करेंगे सिस्टम्स को, तब वो ज्यादा इंक्लूसिव फील करेंगे, और उनकी रेटिंग पे जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो हमारा अपना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम्स है, एग्जामिनेशन है, एकेडमिक्स है, वी विल बी मोर ओपन टू everything. We will be more open to them. I think we will be able to correct our mistakes and be more responsive. So in conclusion, we have to make it more barrier-free institution, not just for the persons with disability, but also for those who are feeling socioeconomic disadvantage, gender disadvantage, or any other kind of disadvantage. So thank you, because from identity, equity, diversity, inclusion, we have to come to the belongingness. जब तक बच्चे बिलोंग नहीं करेंगे, जब तक उनको लगेगा ये मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, तब तक वो उसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल नॉट बी एनकरेज टू कम टू दैट इंस्टीट्यूशन अगेन एंड अगेन. दैट्स ऑल. थैंक यू. जी, thank you ma'am, it was a wonderful talk. Thank you so much. Thank you. आपने मुझे encourage किया, so I went back and a lot of good examples, practical examples that happens in the day-to-day life. और इन्हीं से बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ भी है. And being at different positions, बहुत सारी चीजें समझी, मगर एक चीज है कि बहुत कुछ सीखा भी, बहुत एक्सपीरियंसेस लाइफ में सीखे, और आई थिंक दैट इज आल्सो डाइवर्सिटी. Yes, it is also a diversity. जी, very nice. Anybody has any question or observation? मैम, जैसा आपने बोला कि आप एनएसएस की भी प्रोग्राम ऑफिसर रही हैं, मैं भी मैम 2.5 ईयर एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर रही थी, और आपके जितनी अचीवमेंट तो नहीं मिली, बट मेरे एक बच्चे को स्टेट अवार्ड के लिए अभी 2021-22 को अभी उसको स्टेट अवार्ड मिला है मैम. वेरी नाइस. आई वाज द प्रोग्राम ऑफिसर आल्सो, एंड द कैंपस यूनिट्स की मैं वो थी, क्या कहना चाहिए, कन्वीनर. या ये अवार्ड्स उस दौरान के हैं. एज एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर आई वाज वेरी न्यू इन द कैंपस आल्सो, एंड इतना मुझे तब अचीवमेंट नहीं मिली. मतलब मुझे समझते जब तक टाइम लगा, देन आई वाज चेंज्ड, बिकॉज आई नेवर हैड बीन. मैं आपको खुद अपनी बात बताती हूँ, ड्यू टू माय ओन रिजर्वेशंस आई वाज नेवर अ वेरी एक्टिव इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड आई थिंक अब जब मैं हुई हूँ इन एक्टिव, माय पर्सनालिटी हैज चेंज्ड अ लॉट. मेरी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं, वो जब अब मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं तू तो वो है ही नहीं जो स्कूल में थी, दब्बू डरपोक. एंड ऑल ऑफ इट हैपेंड बिकॉज एक और चीज थी, आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ माय टीचर्स एसोसिएशन, आई वाज 3 times in the teachers association. तो धीरे धीरे आई फाउंड माय वॉइस एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थिंग्स. मैम, मैं भी फर्क पड़ता है. यस मैम, मैं भी पहले कॉलेज टाइम में एनसीसी थी मैम मेरे पास, और जब मुझे एनएसएस का चार्ज दिया गया तो पहले मैंने ये सोचा था कि ये सफाइयां ही कराते रहते हैं, ज्यादा सा कोई काम तो होता नहीं है. बट जब एनएसएस खुद लिया मैम, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे भी ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, बट धीरे धीरे इतना अच्छा लगा मैम. कैंप्स अटेंड किए, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल लेवल, तो बहुत एक्सपोजर हमें ही इतना मिला है, तो बच्चों को तो बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो बहुत सारे कैंप्स अटेंड करते हैं. बिल्कुल. तो इन्होंने मेरा टॉपिक रिस्ट्रिक्ट किया था ना, स्टूडेंट डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी, तो फैकल्टी में भी होनी चाहिए. टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी भी बहुत डाइवर्स होती है. जब आप वहीं से पढ़ के वहीं बात करते हो, तो फिर वो डाइवर्सिटी नहीं आती है.
यस मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे ऐसा लगता है नाम तो यूनिवर्सिटीज का यूनिवर्सिटी है, बट देयर शुड आल्सो बी अ यूनिवर्सल कल्चर इन दैट इंस्टीट्यूशन। वो होना बहुत जरूरी है। इसी से ही मतलब द रिचनेस दैट कैन बी ब्रॉट इन बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्सिटी ऑफ द फैकल्टी। I think then only what we are talking about is a part of the value-based education where we are talking about respect towards the diversity and inclusiveness. वो automatically आ जाएगा। हाँ, because the faculty भी diverse होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस ना मैम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होती है। जैसे हमारे यहाँ तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं है तो हम ये इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बट यू नो वहां पर किडवई सर थे और उनके साथ जब हमारी बात होती थी तो वो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई HRDC की, विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट, कि वहां पर जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे कम फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, कोई साउथ से आया, कोई इधर से आया, कोई कहाँ से है, तो उनके वहां जो फैकल्टीज थे विच वर ऑफ दैट एरियाज, जैसे अगर कोई पंजाब से है तो पंजाब के कोई अगर टीचर है उनके वहां पर, कोई दिल्ली से है तो दिल्ली के कोई टीचर है वहां पर, अगर कोई मतलब वेस्ट यूपी से है, कोई ईस्ट यूपी से है, तो या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट से है, तो जैसे जैसे जिस स्टेट के पार्टिसिपेंट्स आते थे उन सभी पार्टिसिपेंट्स को उन टीचर्स के घर एक दिन चाय पे भेजते थे। तो वो मतलब दे यूज्ड टू एंजॉय, दैट वाज रियली यू नो हार्ट टचिंग एक्टिविटी। तो ये डाइवर्सिटी देखिए वहां पर रिचनेस ऑफ फैकल्टी थी, इसलिए दे कुड टेक अप दैट डाइवर्स एक्टिविटी, वो उस चीज को ले पाए और कर पाए। मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरह के कल्चर हर जगह हो तो ये जो प्रॉब्लम्स हम बात करते हैं ना कि जहाँ पर एक्सक्लूसिविटी की हम डिमांड करते हैं, वो रादर एक्सक्लूसिव होकर ना इंक्लूसिव होना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हाँ जी बात जी इनफैक्ट मैम मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी वहाँ पे मतलब चाहिए, बिकॉज जैसे कि मेरा डॉक्टरेट है वो JNU से है, एंड आई सा स्टूडेंट फ्रॉम यूपी बलिया से, वो था राम सिंह, और मुझे अब भी जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे यूं प्राउड भी फील हो रहा है, और मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि व्हेन ही केम टू JNU उसके पास उसकी +1 और +2 में जो हमारे यहाँ पे ब्लू कलर की शर्ट और खाकी पैंट डालते हैं ना, तो उस टाइम वो डाल के आया था, मींस वो उसने ग्रेजुएशन में भी यूज की और उसकी मास्टर्स के दौरान भी उसने यूज की, और वो वहां पे एमफिल में आया था, एंड राइट नाउ अभी वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में वो सेलेक्टेड हो चुका है। और वो इट वाज ओनली ड्यू टू बिकॉज JNU प्रोवाइड हिम MCM टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, बिकॉज JNU में है जी क्योंकि, और वो MCM स्कॉलरशिप दैट इज आल्सो फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स, बिकॉज इन रिसर्च वी हैव ए लॉट ऑफ स्कॉलरशिप जस्ट एज JRF है और राजीव गांधी फेलोशिप है, बट इन ग्रेजुएशन कोर्सेज देयर आर नॉट सच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। तो उस वहां मैंने देखा है कि नॉट ओनली इन JNU बट आल्सो इन IIT, जब हम कई बार वहां जाते थे क्योंकि JNU IIT के बिल्कुल नजदीक था, है ज्यादा दूर नहीं है, कभी चाय के लिए जाते थे तो वहां पे बच्चे हमें बताते थे कि हमारे यहाँ भी ऐसा कोई स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, और JNU में दैट स्कॉलरशिप वाज 8,000 रुपीज, मतलब 8,000 रुपए में एक स्कॉलर का या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का काम चल जाता है। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफिकली इन यूनिवर्सिटीज देयर शुड बी सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दिस कंट्री, SC ST माइनॉरिटीज या रिमोट एरियाज में जो झारखंड से हैं जो बच्चे, जो उत्तर प्रदेश के रिमोट एरियाज में हैं, क्योंकि हरियाणा तो इतना मतलब बड़ा है नहीं ना स्टेट, वहां पर तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की उतना मे बी नहीं है क्योंकि वेल साउंड मतलब स्टेट है ये। तो मुझे लगता है इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर शुड बी सच टाइप ऑफ इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन शुड बी देयर, आई थिंक सो मैम। आई थिंक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ तो देता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हमारे बहुत सारे बच्चे लेते हैं सोशल वेलफेयर। लेकिन मैम वो पोस्ट मैट्रिक द अमाउंट ऑफ
जी, अमाउंट ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाज नॉट सो मच साउंड ना कि वो सर्वाइव कर सके। जी, मेरिट कम मींस तो मुझे लगता है सब यूनिवर्सिटीज में होगी, हमारी में भी है कैलेंडर में, बट somehow बच्चे फायदा उठाते नहीं, बिकॉज एक ये भी बात है ना, अवेयरनेस ही नहीं होती है उन बच्चों को। हाँ, जैसे कि राजीव गांधी फेलोशिप जो आई थी, जब मुझे बोल बोल के बच्चों को अप्लाई करवाना पड़ा, और मिली जब उनको, तो फिर उनको समझ आई कि ये तो बहुत अच्छा था। पीएचडी स्कॉलर थी वो जिसको मिली थी, एंड इट्स अ वेरी फेयर अमाउंट, एंड अच्छी आप वो। जी नहीं, एमफिल और पीएचडी में देयर आर वेरियस स्कॉलरशिप्स, इससे हटके भी मेनी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आर देयर, माइनॉरिटीज के लिए अलग से है। आप कह रहे हो नहीं जी, है? जी जी, ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स के लिए, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी कैंपस कुरुक्षेत्र से, मास्टर्स, एमफिल, बीएड, एमएड, और इसके साथ साथ देयर आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एंड सीबीएलयू एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस इन हरियाणा, बट वहां पे नहीं है बच्चों के लिए जो अप टू ग्रेजुएशन और अप टू मास्टर्स में 2 साल पढ़ते वक्त ए पर्सन हु इज फ्रॉम द सोशल लो, मतलब पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, उसकी हालत खराब हो जाती है, आगे वो सोच ही नहीं सकता एमफिल में या रिसर्च में आगे जाने के लिए। तो such type of scholarship and financial inclusion should be there in universities, and whenever it will be possible for you, kindly recommend this thing to the UGC and higher authorities that final inclusion up to graduation and post graduation should be there in universities. जरूर जी, जरूर। परवीन जी, ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप की, इट इज नॉट JNU तो बहुत सारी टाइप्स की स्कॉलरशिप देता है जस्ट एट द एंट्री लेवल। जी जी, और तकरीबन एक सर्वे के अंदर ये पाया गया था कि JNU इज स्पेंडिंग अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपीस पर चाइल्ड पर ईयर। ठीक है, इनका टोटल खर्चा है रहने खाने का और उनकी स्टडीज को सपोर्ट करने का। ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड इन JNU गेट अ स्कॉलरशिप वन टाइप और Yes, ma'am. Yes, lot of variety in the JNU for the basically PET जो स्कॉलरशिप है वहाँ MCM है मैम, किसी के पास कोई भी स्कॉलरशिप ना हो बस, but you have to register yourself and you will be entitled for the MCM type of scholarship, that is 8,000 rupees, वो सबसे PET है। उसके बाद how much you will study, how much you will gain the qualification, you will get another type of scholarships में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बाकी स्टेट्स में नहीं लगी हुई, सारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है SC BC माइनॉरिटीज के लिए जो है वो स्कॉलरशिप है। वो MCM मैम, इट इज ऑल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, MCM सब के लिए है, मतलब वो कोई भी उसको अवेल कर सकता है, इट इज नॉट फॉर द अलग बात है कि हर स्टेट के अंदर हर तरह की स्कॉलरशिप नहीं है हर यूनिवर्सिटी के अंदर एज द JNU एज अ वैरायटी। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहाँ की स्टूडेंट यूनियन भी बहुत स्ट्रांग है और इसको सपोर्ट करने के लिए टीचर यूनियन भी बहुत स्ट्रांग है। जी मैम। And they don't follow any rules and regulations for the grants of the government, and they also are the charming babies of the government as well. Yes, ma'am. They fetch the grants from the government very easily, yes, as compared to the other universities. और दूसरा ये है कि जिन जगह पे मिलती है वहां पर सिस्टम में थोड़ी सी फ्लॉ है कि जब मिलनी चाहिए थी